1, 2, 3. All right. So recently and lately, our Honorable Chief Minister Pema Khandu sought for solving the issue pertaining to the Chakma and Hajong community. And recently on the 75th Independence Day, you must have known, and आप सबको पता है कि the Honorable Pema Khandu sir ने कहा है to deport the Chakmas and Hajong community from the state of Arunachal Pradesh. So, even this statement of Pema Khandu was supported by our Honorable Union Minister of Law and Justice, Sri Kiran Rijiju ji. Even he has supported the Pema Khandu statement in his journey during the Jan Asirwad Yatra. So today, we the Team Space has come to this Dayun in Changlang district to inquire and to know what the Chakmas and Hajong community feels about this statement. So, government का जो ये statement दिया है, do the government is really reluctant, is really seriously about to deport this Chakmas and Hajong community? Let us know. So, आप लोग अपना अपना introduction थोड़ा हमारा space viewers को दे दीजिए. Yeah, my name is Drisha Muni Chakma. I am the president of All Arunachal Pradesh Chakma Student Union. Okay, thank you. My name is Ade Chandra Hajong, headman cum vice president of CCRCSIP committee. Okay, thank you. My name is Mukut Kumar Hajong, social worker Dayan. Okay. My name is Santosh Kumar Karbadi, social worker Dayan. Okay, so you guys belong to Chakma or Hajong? Hajong community. Hajong community. Chakma community. Okay, so on my right, may I know your name? My name is Dilip Chakma. I am Joint Secretary CCRCHAP. Okay, thank you, sir. Well, my name is Raisona Chakma and I am an investment banker. Okay. My name is Rakesh and I'm the president of the Chakma Youth Federation. Okay. I am Tapan Vikas Chakma, social activist from Dayan. All right, so thank you everyone of Chakma and community, brethren. Now, thing is that the first question would I would like to ask from on behalf of our indigenous people is that recently, as you all know, that our Honorable Chief Minister had stated to deport all the Chakmas and Hajong, approximately 60,000. So, what is your take on it? जब 15 अगस्त को ये हम लोग को सुनने को मिला, अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा है. अच्छा ये लगा कि जो 50 साल से ऊपर ज़्यादा इशू है, इसको सॉर्ट आउट होना चाहिए. और चकमा लोगों का दुर्दशा के बारे में बताया है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर ने. वो हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने देखा है, पढ़ा है, जो पिछले बार ये विजयनगर टूर पे थे. तो लेकिन एक भय भी पैदा हुआ कि जो सो कॉल इलीगल माइग्रेंट्स उनको डिपोर्ट किया जाएगा. और उनको हम लोगों ने उनका जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिवली लिया है, क्योंकि पॉजिटिवली इसलिए लिया है कि इशू को सॉर्ट आउट होगा. अगर कोई इलीगल माइग्रेंट है उनको डिपोर्ट करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है. क्योंकि एज वी नो there is no illegal migrants in Chakma and Hajong in this particular Arunachal Pradesh. You belong to Chakma community? Yeah, I am the president of Arunachal Pradesh Chakma Student Union. So I would like to know from Hajong community. Hajong community. Okay, sir, what do you have to say about the deportation of 60,000 Chakmas in Hajong? I welcome the speech he had addressed on 15 August. Okay. I will हिंदी में बोलूँगा. जी है, जो पेमा खंडू सर ने जो बोला था, और वो तो वो बात ऐसा बोला, सही बोला वो, जैसा कि जो हम लोग का 60,000 जो चकमा एंड हाजोंग जो फैमिली यहाँ आया है, गवर्नमेंट ने ला के यहाँ बसा दिया. ऑलरेडी क्रिएटेड विलेजेस, बहुत सारा विलेज क्रिएट करके हम लोग बसा है इसमें. तो इसमें आज जैसा कि जो माइग्रेंट हो के आया उसमें ज़्यादातर नहीं है. ज़्यादातर इसमें जो है सब बाई बाट का ही ज़्यादातर है. इसमें कुछ लोग हम लोग को बाई बाट का तो सिटीजन मतलब वोटर राइट मिल गया. तो इसमें अभी जो सर ने जो बोला था तो उसमें ठीक है, वो हम लोग का दूरदर्शन देख के मैंने वो बोला था जैसे इसको सोल्व करना है, वो ठीक है, सोल्व करना तो हम लोग चाहते हैं उसको. तो सोल्व तो हम लोग तो इतना साल हो गया यहाँ रह के, तो हम लोग का जैसा कि ये जन्मभूमि है हम लोग को बोलने से, तो इसमें हम लोग अपना ही मतलब मदरलैंड जैसा हम लोग इसको मानते हैं. और हम लोग कहीं नहीं सोचा कि हम लोग कहीं जाके बसेगा, तो वो फिर हम लोग को तो दूसरा जगह में लेने से तो हम लोग फिर रिफ्यूजी बनेगा. तो इतना साल रिफ्यूजी साल हो गया, मैंने जब से 64 से आया, तो 64 से आने के बाद अभी 57 साल हो गया. तो इसमें तो ऑलरेडी मैंने हम लोग Okay, thank you.
this was the question pertaining to the deportation of Chakmas in Hajong. But I would like to know more from the Chakmas in Hajong community member. So, would you like to opine your statement? We welcome the statement of our Honorable Chief Minister, including the statement of the Law Minister. What we feel is that we have been staying here since long time back. We are deeply connected to this state. This is our motherland. We have an appeal to our brothers and sisters in Arunachal Pradesh. We are born here, born and brought up here. Now, if you want to relocate to some other state to us, you're going to create more complications, because if you talked about relocating the Chakmas to other states, you are at least creating some other problem by actually taking the Chakmas there. Now, we have been settled here. We have been staying here since 60 years, right? So we feel we are deeply connected. We respect whatever the concerns the indigenous people of the state have, but we must find a middle way so that, you know, the rights of the indigenous population also don't get breached, and also our rights also been taken care of. So we can find a middle way, and that can be happen only when we can communicate. And also I would like to appeal the media also to actually fasten a very good message about the Chakmas, because what I feel is there are a lot of times when the Chakmas have been portrayed in a bad light since long years. So that mentality has to be also changed. So we have an appeal from to the media even to please take care of this, so that, you know, we can actually bridge the differences we have. Thank you. Okay, thank you. That was very nice statement from Chakma community, right? Chakma. Okay. So any more Hajong community? थैंक यू सर। मैं अरुणाचल प्रदेश में डाइन में 48 ईयर्स हुआ, यहाँ जन्म हुआ है। Okay. तो 2004 में बाय बर्थ सिटीजन से हिसाब से हम लोग यहाँ वोटिंग राइट मिला हुआ है। तो यहाँ में नंबर 1 एक है मेरा ये जो डायून अरुणाचल प्रदेश, तो मेरा मातृभूमि है, जन्मभूमि है, इसमें हम लोग का पूरा लगाव है। तो इसलिए मैं अरुणाचल गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर और किन्नर लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें यहाँ से रीलोकेशन करने का जो बोला है आप लोग, वो दिल से छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर हम लोग चकमा हजंग यहाँ से अगर रीलोकेशन हो जाता है, डिपोर्टेशन हो जाता है, तो हम लोग का लाइफ आप लोग सीन लिया जैसे हो गया। यही बात सही कहना है मुझे। So thank you for your valuable opinion and statement. So now next question is, actually thing is that आप लोग का सबका अपना अपना एक opinion है, but pertaining to the grievances that we indigenous people, but I belong to indigenous people, but I belong to the media. I don't have the rights to be on the side of either group. So I would love to be on the neutral. So my question would be pertaining from the grievances that the indigenous community have. So ये है कि indigenous community का मानना ये है कि इतना सालों से आप लोग 1964 से आया है, 1960 से आया है, तो आप लोग एक टेम्पररी सेटलमेंट के कंडीशन में आया था, अरुणाचल में सेटल किया गया था। अब जैसे कि आप लोग का हिस्ट्री आपको पता ही है, आई डोंट हैव टू से अबाउट इट। सो आप लोग इतना साल से रहा है यहाँ पे, तो आप लोग अपना मातृभूमि, अपना देश वापस जाना क्यों नहीं चाह रहे हैं? देखिए, जो है एक्चुअली 1964 में जो चकमा एंड हाजोंग आपका माइग्रेशन हुआ, ये लीगल माइग्रेशन है। लीगल माइग्रेशन है, क्योंकि ये जो है आज का ज़माना में जो आपका जैसे कि रोहिंग्या, बाकी जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जैसे आ रहा है, ऐसे जो है 1964 में चकमा एंड हाजोंग लोग ऐसा नहीं आया। एक्चुअली चकमा एंड हाजोंग जो है वो लोग वैलिड माइग्रेशन लेके आया था। तो इसलिए जो है ये गवर्नमेंट का एक स्पेशल जो है एक प्लान था ये जो है। तो इसलिए जो है ये जो जाने का जो आप बात पूछ रहे हैं, ये तो हम लोग कभी सोचा भी नहीं है कि हम लोग जो है ऑलमोस्ट 57 ईयर कंप्लीट हो रहा है यहाँ जो है। तो इसलिए जो है जाने का जो है ऐसा तो जो है कभी हम लोग ना सोचा ना कभी ये पॉसिबल भी है, क्योंकि ऑलरेडी जो है 1947 में जो पार्टीशन हुआ था उसमें जो है इतना सारा विक्टिम हुआ हम लोग जो है कि जो है स्लिप जो है एक मार्जिन एक लाइन से जो है हम लोग जो है इतना जो है हम लोग विक्टिम हो गया। फिर अभी दोबारा अगर रीलोकेट का बात जो हो रहा है तो ये सबसे ज़्यादा हिम्मत हो जाएगा। इसलिए जो है मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि जितना भी इंडियंस जो है माँ पिता आपका भाई बहन है,
हम लोग भी आप लोगों का साथ रहना चाहते हैं, और ये भी हम लोग जो है ध्यान में रखेंगे कि आपका कल्चर, आपका जो है एवरीथिंग जो है वो हम सब कुछ ध्यान रखना चाहते हैं, और आप लोग भी हम लोगों का जो राइट को भी थोड़ा ध्यान रखिए। So thank you for your valuable opinion. And anyone want to give statement on this? Would you like to? Sir? Yes. आप थोड़ा दीजिए इसके ऊपर अपना ओपिनियन। एक्चुअली जो चकमा हाजंग यहाँ पे 1964 टू 1969 तक लाया गया है विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट एंड डेफिनेट प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बल्कि तब नेपा था अरुणाचल स्टेटहुड तो 1987 में ही मिला है। बिफोर दैट वी हैड एंजॉयड एवरी राइट्स लाइक रेशन कार्ड, वी हैव एंजॉयड इट एंड वी हैव जॉब, गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो बिफोर 1987 एज वेल एज गन लाइसेंस, बट gradually after statehood of Arunachal Pradesh, all the rights has been taken away from us. Now we have have been living here peacefully with all the communities, and we want to live here. We don't want another relocation or another life of refugee. We want to live here peacefully with all the communities of Arunachal Pradesh. Thank It's you. very nice statement from you. So thing is that when you talked about peaceful living, peaceful livelihood in Arunachal Pradesh, so I would like to cite an example. Recently in the Changlang in Khatan village, Chakma Hajong, the issue of Chakma Hajong came to the limelight on social media. Your community has encroached the indigenous land. Okay, in Khatan village there was many manhandling issues there. It was on news. Even the APSU had to visit the Khatan and speak to you guys. So if you talk about the peaceful livelihood, why do you create nuisance over this indigenous land? I think as far as the Khatan issue is concerned, it was a dispute of district boundary. It's not a dispute of the communities of Singpho or Mismi or Chakma, right? So it is a dispute of boundary between two districts which the government hasn't allocated or created a line actually there. So the issue is that if the people, they are confused there, where is our boundary? Even the people from the Lohit, they are also confused where is their boundary, because the government itself doesn't know where is the boundary of this two districts, between these two districts. So that is the entire issue. Okay, talking about the boundary issue, whatever, irrespective of whether it is the boundary of Lohit or this Changlang, thing is that what the matter is that Chakma Hajong community, according to the indigenous people, you are illegal migrant. Since 1960s, you have been temporarily settled here because of your unprecedented bad situations in your mother country. Now thing is that right now आपको जो मैंने पूछा कि आप लोग peaceful रहता नहीं है actually. Every now and then there is a Chakma issue. You are encroaching indigenous land, you are encroaching tribal जो Singpho Khamti language का जमीन में आप लोग है. And recently last time when I went to Miao in Deban, I saw so many Chakmas and Hajong villages there. So आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग legally आया है. So why in the span of just mere 10 decade, okay, 1 or 2 decade, means 20 years. So इतना साल में आप लोग इतना population boom हो गया. Legally तो आप लोग से 3,000 आया था and with 14,000 family. So इतना within the span of 20 years आप लोग कैसे इतना population boom हो गया, कैसे 2 लाख 3 लाख पहुंच गया? First of all, let me rectify your, whatever the statement in front of media. That there are only 14,888 in 1964 Yes, total. That is the total population, and 2,000 something. That is 2,000. Yeah, sorry. 2,748 is the total yes. families. Okay, Yes. okay. NCPR, जैसे आप कह रहे हैं कि इसका population growth बहुत ज़्यादा है, which is very irrelevant at the moment. If government अगर चाहते हैं तो they are most welcome. 65,000 चकमा हाजोंग मिला के पॉपुलेशन है. अगर आपके इसके अलावा कोई अगर इलीगल माइग्रेंट है, वी आर रेडी टू डिपोर्ट एंड इवन वी आर असिस्टिंग टू हेल्प. कोई इस तरह का कोई लोग मिलता है. जो आप जैसे कि होता है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है. इफ़ यू कंपेयर विद द पॉपुलेशन, I know that you will be asking this particular question, so I'm very ready with my data as well as. 1964 में 14,888 पॉपुलेशन आए थे एंड 79 में ये बढ़कर 21,494 बढ़ा है. जो 2000 लास्ट सेंसस है 2011 में 4,974. दिस इज द वाइट पेपर पब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ सेंसस रिपोर्ट एंड वी आर नॉट एडिंग एनीथिंग दैट. ये सरकार की तरफ से है 49,784.
जो पॉपुलेशन ग्रोन है यानी कि 1964 से 2011 वो अराउंड 234% है इन द 47 ईयर्स, जो कि 4.98% है फॉर ईयर के हिसाब से। इफ़ यू कंपेयर विद ऑल ओवरऑल अरुणाचल प्रदेश, हम लोग का जो पॉपुलेशन है 1384 हुआ है, जो कि 1961 में 3.74 lakhs थे। इफ़ यू कंपेयर विद द चकमास, हाजोंग एंड इंटायर अरुणाचल प्रदेश का पॉपुलेशन ग्रोथ है 6.22 पर ईयर, जो कि चकमा से काफ़ी ज़्यादा है। चकमा एंड हाजोंग लोगों का 3.84 है ओवरऑल पर ईयर का ग्रोथ है। तो इस तरह का यानी कि हम लोग को जो भी बातें करना चाहिए, जो भी हमारे जो भाई बहन है इंडिजिनस पीपल लोग, हम लोग थोड़ा रिसर्च करके बैठना चाहिए, क्योंकि हवा में सोशल मीडिया में तरह तरह की अनगिनत बातें, अनवियस बातें चलता है, उसको विश्वास ना करके हम लोग थोड़ा रिसर्च करके उसको थोड़ा हम लोग अपने आप में ये करना चाहिए। जो CAGR का रिपोर्ट है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट, तो 2.87% है, वो स्टेट का है, और चकमा लोगों का है 2.60। व्हाट इज द 2.87 और 260 सबसे छोटा होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ हमारा इस तरह का ग्रोथ नहीं हुआ है। इवन इफ यू कंपेयर विद द स्टेट आल्सो देयर इज नो सच टाइप ऑफ। But thing is that okay, fine. I would not comment on that data, but I would like to say that you are comparing a Chakma Hajong community with entire Arunachal's indigenous community. When you take okay, Nisi को छोड़िए, Nisi तो एक populated tribe है, but when you see each tribe which has been there in Arunachal Pradesh since time immemorial, उन लोगों का पॉपुलेशन ये 20 years में इतना भी पॉपुलेशन बूम नहीं हुआ कंपेयर टू व्हाट चकमा एंड हाजोंग हैड। इसी वजह से मैं इसको ऐड करना चाहूँगा, पॉपुलेशन क्यों बढ़ता है? इवन वी डोंट वांट, पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग पॉपुलेशन आप लोग का इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप लोग ने इलीगल चकमा एंड हाजोंग्स माइग्रेशन को अलाउ किया है, इसीलिए। दैट इज नॉट आंसर। द पॉपुलेशन ग्रोथ जो हमने कंपेयर आपके सामने किया है पूरे स्टेट का, वो बिल्कुल डिग्रोड है हम लोग का। और जो पॉपुलेशन जो जैसे एक लोगों का 4 लोग 5 बच्चे हुआ है, जब आपके पास कोई शिक्षा की कमी होगी, जब आपके पास कोई खाने की कमी होगी, उस समय कोई यानी हमारी तरफ से कोई अवेयरनेस, सरकार की तरफ से कोई अवेयरनेस नहीं होगा पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। इस तरह की वजह से तो बढ़ता ही है पॉपुलेशन। तो स्टिल वी पीपल, सरकार की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव लाया नहीं गया है। हमारी स्टूडेंट विंग, वोमेन विंग्स की तरफ से, यूथ फेडरेशन की विंग की तरफ से हम लोग कह रहे हैं भाई आपके पास अगर एक फैमिली है, 2 बच्चे हैं, ये एक दो जने हैं तो 1 बच्चा 2 बच्चा होगा मैक्सिमम। इस तरह हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो बिल्कुल लिमिटेड है, तो हम लोग को तो इसको बना के रखना है। इसमें पॉपुलेशन का बात ऐसा है कि देखिए जो है, माय ग्रैंडफादर ही माइग्रेट विद 2 sons and 5 daughters. So my grandfather has 2 sons. My father is second one, and we born 2 brothers and 5 sisters. Just you calculated it. And I have two sons, and my younger brother has 5 sons. Just you see the growth of the population. So इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैं गवर्नमेंट को, कोई भी एजेंसी को जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो है वो ये रेडी फॉर बायोमेट्रिक सेंसस टू क्लियर द डाउट्स ऑफ द पॉपुलेशन। इससे अलावा तो कुछ है नहीं। तो ऐसा जो सोच रहा है कि जो है इंडिजिनस लोग की जो है, चकमा लोग जो है लाखों क्रॉस हो गया, कभी कभी जो है 2 लाख 2.5 लाख तक जो है देखा जाता है मीडिया में, जो है ये हकीकत में नहीं है। मैं गारंटी से, दावे से बोल सकता हूँ कि जो है नॉट मोर देन 65। ठीक है, अब इतना गारंटी से अगर बोल सकते हो तो इतना गारंटी से आप ये भी बोल सकते हो कि दिखा सकते हो कि कितना लीगली चकमा एंड हाजोंग लीगली है, सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, क्या आप दिखा सकते हो? That's why, yes, definitely, why not? That's why we, the Chakma and Hajong community, always welcome the state machinery to conduct biometric census. If anyone found illegal migrants, we are ready to cooperate to defaults or whatever government decided. This you have been saying since many years. Yes. So why don't you support the local government, local MLA, pertaining to this, your what you said, biometric, for calculating the population? What kinds of cooperation with the MLA? अभी भी कहा सेंसस के है। हाँ, कोई बात नहीं। Okay, dear viewers, sorry for the interruption because in Dayun नेटवर्क थोड़ा सा खराब था, तो हम कहाँ पे थे? पॉपुलेशन। अच्छा, वहाँ से शुरू करेंगे ना। आप लोग इतना साल से बायोमेट्रिक पॉपुलेशन करना है बोलते हैं, अभी तक क्या क्यों नहीं है? देखिए जो है, ये
एक्चुअली बायोमेट्रिक जो सेंसस है वो हम लोग को तरफ से इनिशिएट कैसे कर सकते हैं, हम लोग के पास वो तो साधन है नहीं, ये तो गवर्नमेंट का तरफ से, क्योंकि जितना भी हाई एमएलए को तो बोल सकता है। ऑलरेडी हम लोग बात भी किया, और लोकल लेवल का बात तो सुनिए ना, जितना भी हाई पावर कमेटी का मीटिंग हुआ था, बार बार ये बात को हम लोग जो है टेबल में रखा है कि जो है देयर मस्ट बी बायोमेट्रिक सेंसस, तभी जो है इसको जो है डाउट को क्लियर हो सकता है। तो इतना तो जो है क्लियर है हम लोग जो है। ओके फाइन। कुछ बोलिए। और कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपने पॉपुलेशन ग्रोथ का बात कह रहा है, कुछ चीज़ें हम लोग को वेरी जेन्युइनली अपने दिल से समझना है, दिमाग से सोचना है कि पॉपुलेशन जो चकमा लोगों का है, यहाँ का स्टेटस के बारे में पता ही है, रिफ्यूजी कहते हैं, जो हम लोग का फैसिलिटीज़ मिला सरकार की तरफ से नहीं मिलता है। लेकिन बाहर के जो इलीगल माइग्रेंट कह रहे हैं बाहर से आ रहे हैं, बाहर चकमा और असम में रह रहे हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, दे ऑल आर एंजॉइंग द ST फैसिलिटीज स्टेटस। तो वहाँ से लोग, उनका मिजोरम में तो आपका ऑटोनोमस काउंसिल भी है, चकमा ऑटोनोमस काउंसिल, CADC जिसके नाम से कहते हैं, वहाँ पे 2 चकमा MLA है, त्रिपुरा में 2 चकमा MLA, एक कैबिनेट मिनिस्टर भी है उसमें से। लेकिन वो लोग यहाँ पे आके रिफ्यूजी जो आप लोग कहते हैं, सो कॉल रिफ्यूजी बनने के लिए कोई आएगा क्या यहाँ पे, वो हम लोग को थोड़ा जो यूथ्स है जो कहता है, उनको थोड़ा समझने चाहिए कि बाहर के लोग आते हैं। और दूसरा बात यह है कि JSPC मीटिंग हुआ था, जॉइंट हाइवर कमेटी, जो हमारा CCR CHFP अलॉन्ग विद जो स्टेक होल्डर है, और साथ में आपसू भी थे उसमें ये काफ़ी दफ़ा बात होने के बाद ये हम लोग एक कंक्लूजन में पहुंचने के लिए ऐसा भी बात हुआ है कि 1964 से 69 के बीच में जो लोग आए हैं वहाँ से, उनको सरकार की तरफ से एक्सेप्ट किया जाएगा। जो उनके मन में एक परसेप्शन का है कि बाहर के इलीगल माइग्रेंट है उसके बाद आए हैं, तो वी आर ऑल्सो रेडी टू, उस टाइप का कोई अगर इलीगल माइग्रेंट उनको डिपोर्ट कीजिए आप लोग। लेकिन 1964 से 69 के बीच में जो लोग आए हैं उनको तो एक्सेप्ट कीजिए, स्टार्ट वहाँ से तो स्टार्ट कीजिए, आप इनिशिएटिव वहाँ से तो ले लीजिए। और दूसरा है कि जो स्टेटमेंट अभी रिसेंटली दिया गया है किरण जी के द्वारा, कि ये थोड़ा मिसगाइडिंग भी है। इवन जो एक सॉल्यूशन के लिए, पॉजिटिव सॉल्यूशन के एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए अमित शाह जी के द्वारा किया गया है कि ये इशू सॉर्ट आउट होना चाहिए। मीटिंग में मैं खुद था ईटानगर में 20 फरवरी 2020, उस कमेटी के मीटिंग में राजभवन में हुआ ईटानगर में, मैं खुद बैठा हुआ था, 3 नंबर में चकमा डेलीगेशन की तरफ से मैं बैठा हुआ था। उसमें ऐसा कोई बात नहीं हुआ था कि चकमा को डिपोर्ट किया जाएगा। उनका कहना कि अमित शाह भाई का कहना था इशू जो है चकमा हाजोंग का इशू यहीं पे होगा, विद इन द अरुणाचल प्रदेश होगा, और ऐसा कभी नहीं कहा गया कि आप लोग को कहीं डिपोर्ट किया जाएगा। तो हम लोगों ने यही कहा है कि हम लोग का इशू यही होना चाहिए। उन्होंने ये कहा हाँ भाई आप लोग का इशू यहीं पे होगा। और जो किरण जी कह रहे हैं हमारे माननीय लॉ मिनिस्टर और जस्टिस मिनिस्टर, तो एक मिस गाइडिंग था भाई, उनके प्रति हमारा पर बहुत रिस्पेक्ट है एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ हिम दैट वो केवल अरुणाचल का नहीं है, पूरे नॉर्थ ईस्ट का रिप्रेजेंट करके एक कैबिनेट में है। और उनका जो बोली है वो हम लोग को वी ऑल आर वेरी इंस्पायर्ड। बट थिंग इज दैट द वे ही हैज स्पीक, दी चकमा लोगों को ऑलरेडी समझाया गया है, कोई भ्रम में ना पाले कि यहाँ पे रहना है, ऐसा कभी नहीं कहा गया। और किरण जी को खास करके, किरण जी को तो बोलने का कोई मौका नहीं दिया गया था। केवल जितेंद्र सिंह जो ये हमारे उस समय देन डोनर मिनिस्टर थे, और अमित शाह भाई जो अभी हमारे होम मिनिस्टर है, और हेमंत बिश्व शर्मा जी थे, 1-2 बातें कहा है, कोई बाकी लोग कोई डिस्कशन नहीं हुआ था। तो ये वेरी क्लियर, ये अंदर की बात बोल रहा हूँ, कभी आया नहीं होगा मीडिया में, क्योंकि आई वॉज द मेंबर ऑफ दैट डेलीगेशन। थैंक यू फॉर योर स्टेटमेंट। सो नाउ यू लाइक आपको कुछ बोलना है? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूरे अरुणाचल भाई बहनों और आपको बताना चाहता हूँ, हाजोंग जो सिर्फ दाइन सर्कल में है और सिर्फ से गांव है, और कहीं चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में, और कहीं चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ हाजोंग है और बाकी कोई भी डिस्ट्रिक्ट में हाजोंग नहीं है। जैसे कि मेयो सर्कल में वो खतन का जो हुआ है, वहाँ में मेयो सर्कल में सिर्फ चकमा है, हाजोंग नहीं है। सोकाम में हाजोंग नहीं है, सुमनसुरी में हाजोंग नहीं है, सिर्फ दाइन सर्कल में हाजोंग है। उसका लगभग पॉपुलेशन है हाजोंग का 3000, और इसका जो परिवार है 594, सिर्फ और सिर्फ दाइन में है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जब से मतलब कमिटी फॉर सिटीजनशिप राइट्स एंड राइट्स ऑफ चकमा अरुणाचल प्रदेश हुआ, तब से हेडलाइन में बोल्ड लेटर में चकमैन हाजोंग लिखा हुआ होता है। तो उससे मतलब हम लोग को क्या है, हम लोग को जो अरुणाचल का भाई बहन, चकमा बोलने से भी आइडेंटिटी नहीं होता है क्या जात है, हाजोंग बोलने से भी आइडेंटिटी नहीं होता है। जब चकमा हाजोंग बोलता है तब ओ रिफ्यूजी है ना, ऐसे कुछ ऐसे करके कुछ आवाज़ आ जाता है। तो वही है। तो बाकी जो है, आप लोग हमेशा मीडिया में कोई भी जगह में अगर कुछ भी हो जाता है तो हमें इनोसेंट हम लोग हो जाता है। हाजोंग सिर्फ और सिर्फ दाइन में है, वो भी से गाँव, इससे अलावा कहीं नहीं है। और जैसे हम लोग का
सेंट्रल गवर्नमेंट सेटलमेंट देकर के रखा है, वैसे ही बैठा है। इलीगल माइग्रेंट तो आप लोग का भी है, लेकिन वो इलीगल माइग्रेंट एक भी नहीं है। आप कितना दावा के साथ कह सकते हैं? पूरे दवा के साथ कर सकते हैं, 100% दवा के साथ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पास पूरा लीगल माइग्रेट क्या वाला सर्टिफाइड है? हाँ, सब कुछ है, सब कुछ है, दिखा सकते हैं। ओके, आफ्टर द लाइव वी विल सी। ओके, थैंक यू सर। सो और खास करके Okay, सर okay. जो है स्पेशली जो है ना, ये लाइव के बाद जो है मैं आपको जो है आपको जो है टीम को जो है मैं गांव में जो है आपको इन्वाइट करना चाहता हूँ कि आप गांव देखिए, क्योंकि एक्चुअली चकमा एंड हाजोंग दे आर नॉट लिविंग इन ए कैम्प, दे हैव डिजिग्नेटेड विलेज। तो आप थोड़ा आके देखिए, हम लोग का रहन सहन देखिए, हम लोग का जो है कैसे हम लोग जो है अभी जो रह रहा है उसको प्लीज आके देखिए जो है। एंड अबाउट द डॉक्यूमेंट्स, सो आई कैन आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट्स दैट यू नो, जो भी हम लोग को हमारे जितने भी यानी कि इंडिजिनियस भाई है हमारे अरुणाचल, लोकल अरुणाचल, एक ही रिक्वेस्ट रहेगा हमारी तरफ से, ये 50 साल का इशू सॉर्ट आउट होना चाहिए, एमिकेबल सॉल्यूशन होना चाहिए। और हम लोग को हमेशा मन में ऐसा कभी नहीं रहा कि आप लोग के राइट्स को छीन के हम लोग अपने राइट ले लें, क्योंकि हमारे मन में हमेशा रहे किसी अपने अधिकार के लिए दूसरे अधिकार को अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। सो विल एंश्योर दैट जो लोकल का राइट्स है दैट शुड नॉट बी डाइल्यूटेड। एंड वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज हमारी तरफ से ये रहेगा, हम लोग होने नहीं देंगे, आप लोग के कल्चर को बचाने रखेंगे। एंड आई एम वेरी थैंकफुल द स्पेस मीडिया पर्टिकुलरली, अब मीडिया का जो धर्म निभा रहे हैं, आई एम रियली सैल्यूट टू यू, बिकॉज बियास होना नहीं चाहिए। साइड के दोनों पक्षों को आप दिखा रहे हैं समाज को, समाज डिसाइड करेगा, सरकार डिसाइड करेगा क्या अच्छा है क्या बुरा। वहाँ से इतने लंबा चल के आप यहाँ पे आए, वी आर नॉट अवेयर, लेकिन यहाँ पे आके आपने बताया कि हम लोग आए हैं, वी आर रियली थैंकफुल, दिस इज अनप्लान, तो इस तरह आया है, वी आर रियली थैंकफुल, एटलीस्ट वी कैन गो अहेड। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इससे सवाल ख़त्म नहीं होता है। सो नाउ थिंग इज़ दैट इंडिजिनस, मैं इंडिजिनस से बिलोंग करता हूँ, लेकिन इंडिजिनस से उसका साइड लेके बोल रहा है, ऐसा भी नहीं है। मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जो होना चाहिए, जो करना चाहिए। तो अभी बोला है कि आप लोग का सेटलमेंट का ऊपर, तो इन द ईयर 2004 एंड 2006 आई केम इन दिस प्योंग एरिया, इवन इन तेंगापानी चौकाम एरिया, मैंने खुद पर्सनली मैंने देखा है। तो इतना सारा एरिया पूरा जंगल था। तो अभी हम जब दायून आया है रास्ता पे, आई वॉज कन्फ्यूज कि हम कहाँ जा रहे हैं, जंगल गायब हो गया। तो ये डिफॉरेस्टेशन जो बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि आप ये फॉरेस्ट रिजर्व एरिया को आप लोग का कम्युनिटी टोटली मतलब ख़त्म कर दिया है। तो आप लोग इस रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में आप लोग अगर एनक्रोच करेगा, देन यू आर लायबल टू गेट पेनल्टी अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। क्या कहना चाहोगे? आई एम रियली थैंकफुल, वेरी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जो इलीगल इम्प्रोचमेंट ये सब बताया जाता है, जो जगह आप देखा है ना हमने, नामसाई से यहाँ तक पियोंग तक, ये हमारे खामती भाई और चिंगपो भाई की कुल लोगों का ही जगह है। उसमें क्या होता है कि चकमा लोग गांव में होता है, उनको हाजिरा लेके लीज में लेके, यार 1 साल आप कीजिए, फिर हम लोग इतना पैसा देंगे, जंगल कटाई जंगल सफाई, ये चकमा लोगों के द्वारा किया जाता है। हमारे जो अभी लोकल जो हमारे नेबरिंग कम्युनिटीज है उन्हीं के द्वारा किया जाता है। बोल रहे हैं कि ये नामसाई और एरिया, ठीक है। आई वेंट टू देबान, आई वेंट टू मियाओ, even in the vicinity in the bank of the river Noa Dihing, I saw many Chakmas like constructing villages there. So what about that? जो एम्पेन वगैरह एरिया है वो सब तो डिपेंडेंट प्लान है, ऑलरेडी प्लान में है, आपको पता सेटलमेंट एरिया है, दोस्त ऑल आर सेटलमेंट एरिया, जो सेटलमेंट एरिया। जो नामसाई, आपका चौकाम, आपका पियोंग जो सर्कुल का जो बात बोल रहा है कि जो है आप कौन सा जमाने में आया, पूरा जंगल है, आप सफाई हो गया, अभी तो टी प्लांटेशन ग्रो हो गया वहाँ जो है। यस, कि यहाँ का जो हम लोग का जो नाइबरिंग जो आपका जो इंडिजिनियस लोग है, या तो जो भी हो खामती हो, सिंपू हो, जो है यहाँ से जो लोग जो है एक जो है कि अपना ज़मीन को सफा करने के लिए जो है कि एक जो है बस, हाँ लेबर भी आप बोल सकते हैं कि जो है, और ये एग्रीमेंट आप 3 साल खाइए 4 साल खाइए, उसके बाद आपको यहाँ से जो बैक होने हो रहा, ज़मीन साफ हो जाता है, वो लोग अपना काम कर लेते हैं बस। दैट इज़ द ओनली, कि अपने से जो है जाके जो है सर कुछ भी नहीं किया, कहीं भी जाइए अभी भी मिलेगा सर कहीं कहीं जो है सर जो है ऐसा काम हो रहा है, बट वो अपने से जो है वहाँ कैसे जाएंगे सर, जो है हम लोग जो है कैसे जाके हम लोग ये सब इतना जंगल से जो है हम लोग क्लीन कर सकते हैं, लेकिन आपका परमिशन नहीं होगा, आप वहीं का ज़मीन का मालिक है। अभी तो आप जो हम लोग को जो हायर कर रहा है कि चकमा भाई आप जो है मुझे जो है 10-15 फैमिली जो है चकमा भाई चाहिए, ज़मीन को जो है मेरा ऐसा पड़ा हुआ है उसको साफ करना है, आप जो है 5 साल खाइए वहाँ जो है जुम की थी, उसके बाद जो है खाली कर दो। कुछ बोलना चाहेगा? ऐसा ही है। एनीवन कुछ बोलना चाहेगा इसके ऊपर? So the thing is that what I say is, we as a human we have very limited resources. Yes, that's true. And यहाँ पे there's so many families who are affected by flood, and
सिंस देयर आर वेरी लिमिटेड लैंड, वो लोग कई बार खमती सिंको एरिया में खेती करने जाते हैं, तो इन लोग को एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट किया जाता है वहाँ पे कि यू वर्क फॉर दिस टेन्योर, आप इतना साल तक काम करो, फिर उसके बाद आप जितना पैदावार होता है वहाँ से उसको डिवाइड किया जाता है विद द फैमिली, विद द ओनर ऑफ द लैंड एंड ऑल्सो द वन हु इज़ वर्किंग देयर। तो ये डिवाइड अगर होता है तो इसी तरह मतलब बहुत सारे यहाँ पे अभी फॉरेस्ट एरिया थे, अभी उसमें बागान लग गया, चाय बागान लग गया, अभी वहाँ पे खेती कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ आई थिंक एक अप्रोच होना चाहिए कि इसके लिए हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है। सो आई डोंट ब्लेम कि दिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ कि सिंगफो लोग क्या है, खामती लोग क्या है, ये ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, बट हम लोग का एक गेस्चर होना चाहिए कि हम लोग साथ में मिलकर इसको कैसे निपटा सकते हैं, वो होना चाहिए। Okay, thanks for that. So, thank you for this little interview. But question तो कभी ख़त्म होता नहीं है, क्योंकि आप लोग actually you people, even ladies, आप लोग सबको every year सुनने को मिलता है the refugee term. तो refugee term क्यों आप लोगों को बोलता है, आप लोगों को पता ही होगा, because you are not the sons of soil, right? You are not the sons of soil, इसीलिए आपको refugee term किया जाता है। इसीलिए, और आप लोग अभी citizenship claim कर रहे हैं, अगर citizenship claim कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट बार बार वर्डिक्ट क्यों दे रहा है? बार बार सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ रहा है। 1996 का वर्डिक्ट है, 2015 का वर्डिक्ट है। बार बार वर्डिक्ट इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र और राज्य की सरकार को करनी है वो नहीं कर पा रहा है। उसको याद दिला रहा है सुप्रीम कोर्ट कि भाई साहब हमने जो ऑर्डर दिया है 96 में, 2002 में, 2013 में, इवन 2000 लास्ट वर्डिक्ट 2015 में आपको करना है। नहीं करना है तो आप लॉ के अनुसार चल रहे हैं। किरण जी को भी ये ध्यान रखना चाहिए, किरण जी हमारे लॉ मिनिस्टर है, जस्टिस भी करना है इनको। तो जस्टिस तो भैया अगर आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे तो जस्टिस के कहाँ होगा। सो थिंग इज दैट अभी वापस आते हैं वो मुद्दा पे जहाँ पे हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैज सेड टू डिपोर्ट 60,000। सो आप लोग को डिपोर्टेशन करेगा, आप लोग जाना क्यों नहीं चाहेगा? अगर वो डिपोर्टेशन करेगा तो आप लोग को फैसिलिटी भी मिलेगा ना। 60 साल यहाँ पे रहा है, लोग अपना खेती बाड़ी, ज़मीन, घर, मकान, बागान सब यहाँ पे किया है। जो पूर्वज हमारे मर गए यहाँ पे दफनाए हम लोगों ने। एक इमोशनल अटैचमेंट होता है जहाँ पे आप अपने माँ बाप या पूर्वज जो वहाँ पे हम लोग सिमेट्री या लाश राइट करते हैं उसके साथ अटैचमेंट होता है। उसको छोड़ के हम लोग को दोबारा रिफ्यूजी बनाने का तो कोई मुद्दा इलॉजिकली होगा अगर कोई हमारे बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल सोचते के विचार से सोचते हैं तो हम लोग। सो फाइनली अगर आप सरकार को अगर आप लोग कुछ रखना चाहेगा इन फ्रंट ऑफ द इंडिजिनस पीपल, इन फ्रंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, एक कॉन्क्रीट वाला इम्पोर्टेंट अगर कुछ सरकार को रखना चाहेगा, क्या मैसेज देगा, क्या रखना चाहेगा? कोई एनीवन? आइए यहाँ पे। सरकार की तरफ से सर मैं सरकार की तरफ से ये बोलना चाहूँगा सर, हम लोग जो कि रीलोकेट करने के लिए जो प्लानिंग किया है सरकार ने, तो मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, डायन का एरिया में हूँ, और इसलिए मैं ये सरकार को ये मैसेज देना चाहता हूँ, रीलोकेट के बाद रीलोकेट जो भी प्लानिंग किया है ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। ये हम लोग जन्म इधर ही हुआ है और इधर ही मरेंगे, और हम लोग का जो एरिया जो है चकमा एरिया जितना भी है, डिमांड से लेकर या जितना भी एरिया है, आप अंदाजा लगा सकता है 20 साल पहले या 30 साल पहले कितना जंगल था, लेकिन ये साफ करके अभी सोना जैसा बन गया, सोना जैसा बन गया। अब फॉरेस्ट को डिफोरेस्ट करके कैसे सोना? नहीं सर, अपना जो गांव है जो भी है, इतना मतलब प्लांटेशन किया है, इतना सुपारी सप्लाई करते हैं हम लोग हर साल में, इतना प्रोडक्शन किया है, शायद दूसरा इलाका में नहीं हो सकता, इतना प्रोडक्शन किया है हमने सर। तो इसीलिए हम लोग का ये ज़मीन इतना मतलब प्रोडक्शन हो गया, इतना सुंदर हो गया, इतना मतलब देखने का लायक हो गया, इतना सरकार के लिए इतना खुशखबरी हो गया कि इतना प्रोडक्शन हो गया कि ये मतलब सकमा लोग और इतना मेहनती है, इतना मतलब जंगल को मतलब जो भी ये था ऐसे खेती जो धान खेती था वो पूरा अभी सुपारी बागान, फल फ्रूट्स का बागान हो गई, इतना सुंदर हो गया क्या बोल नहीं सकते सर आप कि ये मतलब इन लोग क्या बोलते हैं, अभी नौकरी नहीं है हम लोग के पास, नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इनकम नहीं है, क्योंकि अपना जो जमीन को ये करके इनकम करके हमने इतना घर बना दिया सुंदर, अभी गाड़ी घोड़ा सबके पास है सर। ये हम लोग का जो क्या बोलता है अपना मेहनत से, तो इतना मेहनत करके हमने देश को देश में हम काम कर रहे हैं, देश के लिए, कंट्री के लिए, और हम लोग को रीलोकेट की बात करता है सर। ये तो केस ये तो कोई जस्टिफुल बात नहीं है, ये जस्टिफुल बात नहीं है, क्योंकि ये जो मेहनत वाला है तो इनको और भी
ये होना चाहिए फैसिलिटी। ये तो इन लोग को बहुत ये सुंदर है, बहुत मतलब मेहनती वाला है। जैसे मैंने दिल्ली में आपको याद है सारा, चाहे जब पाकिस्तान से जो क्या बोलता है ये पंजाबी लोग आए थे, एक लाइन करके बनाया था, लेकिन जो पंजाबी लोग क्या कर दिया, वो लाइन को गैरेज बना दिया, तो इतना सुंदर हो गया। ठीक इसी तरह हम लोग का जो ये पूरा इतना सुंदर हो गया। अच्छा, इतना सुंदर हो गया सर। इस सुंदर चीज को हम लोग को यहाँ से भगाने के लिए कोशिश करता है। नहीं सर, ये हो ही नहीं सकता। अभी तो आप लास्ट कंक्लूजन पे जाना चाहिए। जो हम लोगों ने इशू है वो सब तो बोला है सबके सामने, मीडिया मित्रों के सामने, आपके थ्रू सरकार को। अभी सोल्यूशन क्या हो सकता है उस पर उस पर बात करते हैं हम। सोल्यूशन ये हो सकता है जो 2020 में 20 फरवरी को जो राजभवन में इनिशिएटिव एक चकमा हाजोंग सोल्यूशन के बारे में बात किया है केंद्र सरकार के इंटरवेंशन के द्वारा, वो जो कमेटी गठन हुई है हम लोग की तरफ से जितने लोग देने थे कमेटी में हम लोगों ने ऑलरेडी सबमिट किया है। अभी बात यह है कि जो बात होना था उस बात को आगे बढ़ना हमारा रिक्वेस्ट रहेगा। जो भी सॉर्ट आउट है, जैसे हेमंत बिश्व शर्मा है, नेदा का चेयरमैन था उस समय, हमारे क्या बोलते हैं पेमा खांडू जी है, उनके नेतृत्व में एक सॉर्ट आउट कॉन्क्रीट कैसे रहेगा सो डैट लोकल इशू का लोकल इंडिजिनस राइट्स भी डाइल्यूट ना हो और चकमा लोगों का जो राइट्स ह्यूमन राइट्स मिलना चाहिए उनको भी ये एक एमिकेबल सॉल्यूशन होके ये मुद्दा इस तरह मीडिया मित्रों की तरफ से आगे बढ़ाना। ऊपर तो आप लोग को शायद अटेंशन तो मिल रहा है। ह्यूमन राइट्स की तरफ से हम लोग बोल नहीं सकते। काफ़ी बार तो आप लोग का चकमा का जो है, चकमा आप लोग का जो यूनियन बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है, नेशनल बॉडी है, दिल्ली में बैठ के आराम से एसी रूम में बैठ के वो लोग वहाँ से वो लोग प्रवचन देता है। तो यहाँ का मेन असली चकमा को यहाँ पे क्या हो रहा है, दिल्ली में बैठा वाला चकमा, बांग्लादेश में बैठा वाला और कहीं कहाँ में बैठा वाला चकमा लोग पता नहीं है ना, तो वो लोग वहाँ से आप लोग को गुमराह कर रहा है। तो इसका क्या है? कोई गुमराह नहीं है। स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट यहाँ पे है, कमेटी का जो राइट्स मिल रहा है, राइट का प्रेसिडेंट यहाँ से लड़ रहा है। जो ह्यूमन राइट्स वाला है जहाँ पायलट होगा वहाँ से तो एक दो इश्यूज तो पकड़ेंगे बिल्कुल, वो भी ह्यूमन राइट्स वाले लोग। सुनने में तो ये आया कि यहाँ के चकमा लोग से टैक्स कलेक्ट करके, चंदा उठा के, जो डोनेशन कलेक्ट करके, और जो इंटरनेशनल लेवल में जो चकमा हाजोंग्स का कम्युनिटी का जो लीडर्स बैठ रहे हैं दिल्ली और अदर प्लेसेस में, उन लोग तो आप लोग का पैसा को लूट के खा रहे, ऐसो आराम जी रहे, और आप लोग तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो ये बेबुनियाद है। ये आप लोग पब्लिक इनोसेंट चकमास एंड हाजोंग को आप लोग ये गुमराह कर रहे हैं। ये बेबुनियाद है। आई एम बीइंग ए प्रेसिडेंट, हमने एक पैसा भी नहीं दिया अभी तक। तो लास्ट टाइम दिल्ली का जो चकमा जो कम्युनिटी है, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा स्लैमिंग द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट, उसके बारे में क्या करेंगे? वो उनका है, जो ह्यूमन राइट्स अगर वायलेट हुआ है उनको लगा। चकमा वाला ने क्या है? चकमा, हाँ चकमा वो एज ए फर्स्ट ऑफ ही इज नॉट ये चकमा की कॉन्टेक्स्ट में मत देखिए उनको। फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड लुक इन एज ए ह्यूमन एक्टिविस्ट। क्या बोलो चकमा इशू में नहीं बात कर रहा है। हाँ, आप लोग का डिफेंडर है वो। नहीं, वो डिपेंडर भी हमारे अगेंस्ट भी हो सकता है, डिपेंडर भी है। ही इज ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। अगर चकमा का चकमा मारेगा वो आएगा ना बीच में, कहीं भी, चाहे कहीं भी ह्यूमन राइट वायलेशन होगा आएगा। जैसे आप किरण जी है, किरण जी का अगर कोई गलत काम करेगा उसके शायद तोड़े ले लेगा, डिपेंड तो नहीं कर सकते हैं वो। कांडू जी है हमारा, कोई कांदू वाला टाइटल वाला कोई गलत काम करेगा, ही कैन नॉट डिपेंड, ही कैन नॉट रिप्रेजेंट भैया हम कांदू है, हमको हम बचाएंगे, नहीं होता है ऐसा। अच्छा ठीक है, विद इन द स्पैन ऑफ 10 years, लेकिन ये चौकाम एरिया, ये तेंगापानी एरिया, इन लोग में चकमा बस्ती इतना सारा बस गया, इसका क्या कहेगा? आप तो बोल रहे हैं दायून में सिर्फ है। तेंगापानी एरिया ना, लोहित में 3 विलेजेस है, वो डिपेंडेंट प्लान 1964 में आए थे, उन्हीं को बसाया गया है। 1964 में 3 विलेजेस है, चकमा बस्ती 1, चकमा बस्ती 2, चकमा बस्ती 3। अराउंड 2025 के आसपास, 2000 या 25 अप्रोक्स पॉपुलेशन है वहाँ पे। So thank you all the Chakmas and Hajong community to come forward and deliver your opinion and your message for the people of Arunachal Pradesh and for the state government. So having said that, I have a big, अभी यही बोलेगा कि स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। It is very easy to sit in the room and say we will deport 60,000 Chakmas and Hajong, but practically अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने खुद देखा है, it seems impossible to deport them. अगर आप डिपोर्ट करेगा, क्वेश्चन इज कहाँ करेगा? असम में? हिमंता बिस्वा शर्मा कोई भी एंगल से इलीगल माइग्रेंट को तो एक्सेप्ट करेगा नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट इन CAA we have seen enough that Assam is already fighting and struggling against the thousands of illegal migrants, and if Arunachal is reluctant to deport 60,000 another Chakmas and Hajong to Assam, I don't think Assam government will accept that. So this is a very big question to the state government and to the people of Arunachal Pradesh कि ये सोचना चाहिए। तो नाउ ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन टर्म्स के ऊपर में चकमा भाई लोग का भी सेंटिमेंट को रखते हुए कि लगता है कि ये लोग का भी एक राइट बनता है, बिकॉज इफ़ यू गो टू द कॉन्स्टिट्यूशन,
Indian Constitution Act of 1955, those who have migrated in or after 1960s to 65, they had been given citizenship. But only thing is that now challenges in front of the state government is that you have to implement certain officials to properly calculate the numbers of illegal migrants, if you say so, if there are. So ये एक challenging है. Local MLA and the state government ये मुद्दा को उठा के चलना पड़ेगा. And now thing is that ये सब मुद्दा से बात करके दायून में आने के बाद और आप लोग बस्ती को देखने के बाद को ऐसा लगता है कि ये चकमा हाजोंग इश्यू since 1964, 1990s to early 20s and now this solution कोई एंगल से कोई एंड होगा नहीं लग रहा है. So इसको एंड करने के लिए there should be certain amicable solution brought by the state government with our representative of our state government and APSU's role, and just like many other unions should come forward and make befitting steps. Now अभी हम ये किरण रिजिजू और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के ऊपर एक सवाल रखता है कि आप लोग इतना आराम से रिलोकेट कर देगा, डिपोर्ट कर देगा बोला है ना, क्या ये आपका कैंपेन है जो आफ्टर 2 years देयर इज गोइंग टू बी अ बिग इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होगा ना, क्या आपका ये इनडायरेक्ट कैंपेन है, क्या ना ये क्या ये आपका जेन्युइन आपका एक स्टेप है, क्या ये आपका एक पब्लिक को गुमराह करने का अनदर टेक्निक है, क्या ये आपका जेन्युइनली इंडिजिनस राइट के लिए लड़ने का एक बड़ा मुद्दा है. सो रिपोर्टिंग फ्रॉम दायोन, दिस इज मी जॉन पेपितातो, स्पेस.